ما زلنا على رقم الصحیفہ 11. ٹھیک ہے نا, ہم صفحہ نمبر 11 مانا کیا ہوتا ہے بتائیں. 11 جو میں نے کہا ہے کیا مطلب ہوا ہے, کس کو پتا ہے 11 کا مطلب بتائیں. جو ابھی میں نے کہا ما زلنا على رقم الصحیفہ 11, اس کا ترجمہ بتائیں جو میں نے کہا ہے. اگر کسی کو پتا ہے تو وہ بول دیں. ما اور نوٹ بھی کر لیں, ما زلنا, ایک منٹ سوری سے کے ساتھ ہے, ما زلنا على رقم الصحیفہ 11. بتائیں کیا میں نے کہا ہے 11. ہاں 11 ہوتا ہے, لیکن ما زلنا کا کیا مطلب ہے. ما زلنا اس پورے کا مطلب ہے ابھی تک ہم. ما زل کا مطلب ہے ابھی تک, اور نا کا مطلب ہے ہم. تو اس کو یاد کر لیں. ما زلنا ابھی تک ہم, یا ابھی بھی ہم صفحہ نمبر 11 پر ہی ہیں. ابھی تک ہم صفحہ نمبر 11 پر ہیں, یہ میں نے کہا. ٹھیک ہے, تو اس کو اس طریقے سے عربی میں کہا جاتا ہے. اس سب کو نوٹ کر لیجیے گا. اچھا, اس کے علاوہ اب ہم مثال کے طور پر آپ کو پیسے چینج کرانے, تو اس کے لیے کسی سے اگر پوچھنا ہے کہ بھائی میں پیسے کہاں چینج کراؤں جا کر, تو اس طرح بولتے ہیں. میرے ساتھ مل کے بولتے جائیں, اور جن کے یہاں شور نہیں ہے بھلے وہ پڑھیں تاکہ محسوس ہو کلاس ہو رہی ہے. من فضلک, من فضلک, من فضلک أين أستطيع, أين أستطيع. دیکھیں ایک تا ہے ایک تو ہے, تو تا باریک ہوگا تو پر ہوگا, تو موٹا ہوگا. أين أستطيع أين أستطيع أن أبدل النقود, أن أبدل النقود. أن أبدل النقود, نون کو پیش ہے دوبارہ. أن أبدل النقود, أن أبدل أبدل النقود. الثمود. نقود, قاف قاف, نقود. نقود. أبدل النقود. ہاں, اور اگر اعراب لگائیں گے تو زبر آئے گی, اور وصف کر کے کہیں گے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں نقود. دوبارہ أين أستطيع أن أبدل النقود, دوبارہ بولیں, سب بولیں, شاباش. أين أستطيع أن أبدل النقود. تین مرتبہ ہو رہا ہے, 2-3 مرتبہ ہو رہا ہے. أين أستطيع أين أن أبدل أستطيع النقود, بولتے رہے 2-3 بار. أبدل النقود. أين أستطيع أن أبدل نقود. النقود. أبدل النقود, أبدل. أبدل أين النقود. أين أستطيع أن أبدل النقود. أين أستطيع أن أستطيع أن أبدل أبدل النقود. النقود. ہاں بھائی آپ بول کے بتائیں. آپ یہ نام ہے رضوان, گل. یلا گل, گل, گل کا مطلب ہے نہیں بولیں, فل کو گل کہہ دیتے ہیں سعودی لوگ. گل یا من رضوان. فضلك أين أستطيع أن أبدل النقود. چلیں نورالدین, اب آپ بولیں یہی جملہ. من فضلك أين أستطيع أن أبدل النقود. مبدلن, نام نون میں مل جائے گا, دلن شمسی نقود. ہے نا, مبدلن نقود. اچھا, اب اپنا جو ہے یہ اپنا کیا نام ہے, ایمن آپ بولیں. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك أين أستطيع أن أبدل النقود. شاباش. مشرف آپ بولیں. من فضلك أين أستطيع یوں کر رہا ہوں أن أبدل النقود. کے بعد کیا ہے, کون صحیح کر کے بتائے گا کیا لکھا ہوا ہے ان کو, میں بھی شاپ بتائیں صحیح پڑھ کے. أبدل النقود. أبدل النقود. أبدل ہے, أبدلن. أبدل النقود. میں کام کرتا ہوں, اس کو ذرا میں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں. دلا میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا اور بڑا کروں. کچھ اسکرین واضح ہوئی ہے پہلے سے. جی. یہ لے, میں اور اس کو بڑا میں نے کر دیا ہے. ہاں, تو دوبارہ بولیں. أن أبدل. اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا امید ہے, اور اپنے پاس سے بھی آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں. جو آن لائن ہے اپنے طور پر بڑا کر لیں, چھوٹا کر لیں. جی, أين أستطيع أن, اب اس کا ترجمہ سمجھیں. من فضلک کا معنی بتائیں جس کو اس کو پتا ہونا چاہیے, سب بتائیں جلدی. برائے مہربانی اور پلیز. آئینہ کا معنی أين كها. استطیع کا مطلب ہے میں استطاعت رکھتا ہوں, میں استطاعت رکھتا ہوں, میں طاقت رکھتا ہوں, کسی کام کو کر سکنا. استطیع کا مطلب ہے. تو أين أستطيع, میں کہاں طاقت رکھتا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ, دیکھیں میں کیسے ترجمہ کر رہا ہوں, توجہ کریے گا. میں کہاں طاقت رکھتا ہوں کہ ابدلا, تبدیل کرواؤں, چینج کرواؤں, النقود, پیسوں کو. تو کیا مطلب ہو گیا, دوسرے لفظوں میں
अस्ततीउ अन उबद्दिला का तर्जुमा मिल के देखें, मैं दो तरह कर रहा हूँ। आईना तो तुम्हारा कहाँ मैं ताकत रखता हूँ कि मैं तब्दील कराऊं पैसे, मतलब कहाँ है, क्या मतलब हुआ कि मैं पैसे कहाँ से चेंज करा सकता हूँ। तो ये जो सकता का तर्जुमा है ना, ये अस्ततीउ दे रहा है, सकता हूँ, ये है। दोबारा बोले, आईना अस्ततीउ अन उबद्दिल अन्नुकूद, أين أين أستطيع أين أن أستطيع أن أبدل النقود मैंने आपसे अर्ज किया था कि नुकूद का इस्तेमाल बड़ी खालिस आदमी का है। आम लहजे में लोग पैसों को क्या करते हैं, कहते हैं तो क्या बोलेंगे, आईना फुलूस अस्ततीउ अन फुलूस उबद्दिल أبدل الفلوس फुलूस, शाबाश, फुलूस कहते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये भी बड़ा जरा हाई फाई स्टाइल है कि मैं कहाँ पैसे चेंज करा सकता हूँ, ये बड़ा लंबा है। वरना नॉर्मल जो कहते हैं ना वो लोग, अब देखें स्लैंग में वो यूं कहते हैं, बड़ा शॉर्ट सा जुमला है, लेकिन ये कि बड़ा जबरदस्त जुमला है। आप देखें, बोले वेन सर्राफ, क्या وين 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 صراف صراف ये नोट करने वाली बातें, सबके पास हाथ में पेन होने चाहिए, कलम होना चाहिए, लिख रहे हो। वेन सर्राफ मतलब मनी चेंजर وين कहाँ है, صراف पैसे तब्दील करने वाला कहाँ है। सर्राफ का मतलब है मनी चेंजर, यानी पैसे तब्दील करने वाला। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, चेंज को अरबी में क्या कहते हैं, सर्फ कहते हैं। तो सर्राफ का मतलब है चेंजर, यानी पैसे तब्दील करने वाला। तो आपने कहा वेन सर्राफ, मनी चेंजर कहाँ है, पैसे तब्दील करने वाला कहाँ है। अब जवाब में जो है वो ये कहा जा सकता है, उसने बैंक का बता दिया कि बैंक के अंदर तो ये लेन देन होता है ये पैसों का। तो उसने कहा अल मसरिफ हुनाका अला बुअदी 100 मीटर, बोले अल मसरिफ المصرف हुनाका, هناك बैंक वहां है। मसरिफ का मतलब होता है बैंक, याद रखें, बैंक वहां है। अला बुअदी 100 मीटर, बोले على على بعد بعد 100 100 متر متر इसका मतलब है मिया का मतलब है 100, मित्र का मतलब है मीटर। मीटर अंग्रेजी का लफ्ज है जिसे इन्होंने बिगाड़ करके मित्र कर दिया, मित्र। और मियाती मित्र का मतलब हो गया 100 मीटर, और बुअद का मतलब है दूरी, 100 मीटर की दूरी पर है, यह मतलब है बैंक वहां पर है, वहां है 100 मीटर की दूरी पर। तो डिस्टेंस के लिए, फासले के लिए लफ्ज आता है बुअद, क्या आता है, बोले بعد بعد बुअद। और अगर इसको बाद पढ़ दें तो इसका मतलब होता है बाद में। जैसे अरब अक्सर बोल रहे होते हैं बादेन, क्या कहते हैं वो लोग, बोले ये लोग बादेन। بعدين जब भी वो بعدين बादेन बोल रहा है इसका मतलब बाद में, बाद में। कोई भी काम हम कहते हैं ना, भाई बाद में आना, बाद में करूंगा, बाद में जाऊंगा, बाद में आऊंगा, बादेन कहते हैं। तो ये बाद और बादेन नहीं है, बुअद। और बुअद के लिए अरबी जबान में एक और लफ्ज है मसाफा। क्या है, सब बोले, मीम को जबर दे, मसाफा। मसाफा। मसाफा देखिए कैसे लिखा है, तो आप यूं भी बोलते हैं मेरे साथ मिलकर, अल मसरिफ हुनाक, बोले المصرف المصرف هناك هناك अला मसाफती 100 मीटर। على على مسافة مسافة 100 100 متر तो दोनों का एक ही मतलब है, मसाफा और बहुत का 100 मीटर की दूरी पर है बैंक वहाँ, ठीक है ना। तो मसरिफ बैंक को कहते हैं, और अगर अंग्रेजी से बिगाड़ के कहना है तो उसको लोग कहते हैं बंक। क्या कहते हैं, बंक। और بنك बाद औकात अरब यूं भी कहते हैं अल बंक हुनाक अला मसाफा 100 मीटर, बोले अल बंक हुनाक البنك البنك هناك هناك अला على मसाफत بعد अला 100 अला متر मसाफत 100 मीटर, बोले على مسافة البنك البنك هناك على مسافة 100 متر 100 متر मियाती की जगह मीत भी कह देते हैं बाद अरब, अला मसाफत 100 मीटर, 100 मीटर, बोले। على على مسافة 100 مسافة متر 100 متر अब देखिए मैंने कितने सारे लफ्ज लिखे हैं। अब असल जो समझदार तालिब इल्म होता है इन लफ्जों को नोट कर ले, वेन सर्राफ, अला मसाफा, बादेन, अलबंक, सर्फ, ये सारे अल्फाज को नोट कर लें। अभी मैं यहाँ से बिठा रहा हूँ ताकि आगे बढ़े। अब उसके बाद जो है, ये तो आपने बैंक का या मनी चेंजर का पूछ लिया, ठीक है ना। और अगर आपको यूँ कहना है कि भाई मनी चेंजर की दुकान वहां पर है 100 मीटर की दूरी पर, तो दुकान को अरबी में कहते हैं महल, बोलिए محل तिजारी, बोले महल तिजारी, محل تجاري तिजारती दुकान। महल का मतलब महल नहीं है, याद रखें, अरबी में महल का मतलब दुकान होता है। और अगर आपको कहना है कि मनी चेंजर की दुकान, पैसे तब्दील करने वाले की दुकान, ठीक है ना, मनी जो एक्सचेंज होता है, तो उसको आप कहेंगे कि महल, बोले महल सर्राफ, बोले महल सर्राफ, वेन महल सर्राफ, فين وين محل محل الصراف الصراف हाँ मनी चेंजर की दुकान का है। तो आप जवाब में कह सकते हैं महल सर्राफ, बोले महल सर्राफ हुनाक محل محل الصراف الصراف هناك على مسافة 100 متر، बोले على مسافة 100 متر مسافة 100 متر हाँ 100 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर कह देते हैं। अहले शाम की आदत 100 कहने की, और बाज़ अरब कहते हैं 100 मीटर, अला मसाफा 100 मीटर, अला मसाफा 100 متر
मियह على مسافة बोलना है, बार बार बोलना है, ताकि यही तो प्रैक्टिस है बेटा। महल तिजारी या महल, शॉर्ट करके महल भी कह देते हैं दुकान को। अब देखिए एक और वर्ड है, अगर किसी को मेडिकल स्टोर का पूछना है तो यूं कह सकते हैं, बोले अफवान, عفوا अफवान यानी आपने उससे कहा सॉरी या एक्सक्यूज मी, जैसे कहते हैं ना यूं, अफवान माफ करना। अयना अजीदु सैदलिया, बोले अयन अजीद أين أجد صيدلية صيدلية सैदलिया, अजीदु सैदलिया, बोले अजीदु أي أجد अजीदु सैदलिया। ये भी बड़े खालिस आदमी का स्टाइल है कि एक्सक्यूज मी कहाँ, अयना का मतलब कहाँ, अजीदु का मतलब मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगा मेडिकल स्टोर को। मेडिकल स्टोर में मुझे कहाँ मिलेगा, कहते हैं मेडिकल स्टोर कहाँ मिलेगा, तो इस तरह कहते हैं अजीदु का मतलब मुझे मिलेगा या मैं पाऊंगा। अयना अजीदु सैदलिया, बोले أين أجد صيدلية सैदलिया अब इसको भी ये लोग शॉर्ट करके कहते हैं वेन सैदलिया, बोले وين वैन صيدلية सैदलिया सैदलिया। बस अजीदु ना लगाएं तो भी जुमला तो पूरा हो गया कि भाई मेडिकल स्टोर कहाँ है। अब अगर वो जवाब में कहता है तो देखें ये है, बोले फिशारिल, बोले في الشارع आखरी, ये जेर गलत है, यहाँ ज़बर लगा दें, शे को क्या लगानी है, ज़बर लगानी है। बोले फिशारिल आखर, शारिल आखिर आखर, आखर का मतलब होता है दूसरा, तो दूसरे रोड में है। क्या कहा, फिशारिल आखर का मतलब क्या हो गया, दूसरे रोड पे मेडिकल स्टोर, यानी एक रोड पे हम पड़े हुए, अब सामने एक और रोड है, तो उसने इशारा करके बोला दूसरे रोड पर। फिशारिल आखर, बोले الشارع الآخر शारिल आखिर अव्वलिही, في أوله का मतलब है, ही का मतलब है उसके, और ये ही लौट रहा है यहाँ पर, ये रेफर कर रहा है शारे पर, उसके शुरू में, अव्वल माना शुरू और फी माना में, तो मतलब क्या हो गया, जरा मुझे गौर करके बताएं। फिशारिल आखर फी अव्वलिही, पहले अरबी में बोले في शारिल الشارع आखिर फी अव्वली, أوله क्या मतलब हो गया, रोड के आखिर में है। नहीं आखिर नहीं है, यही मैंने अभी आपको समझाया कि ये आखिर नहीं है, ये दूसरा है आखर। दूसरा तर्जुमा क्या बन रहा है पता है, शारी दूसरे रोड पर, इसका तर्जुमा बनेगा दूसरे रोड के शुरू में ही है, शुरू पर, दूसरे रोड के शुरू में ही है। शुरू में, हाँ, दूसरे रोड के शुरू में, आखिर दूसरे रोड के शुरू में है। हाँ, और इसको यूं भी बोल देते हैं, बोले फी अव्वल, बोले في أول शारिल आखर, बोले फी अव्वल शारिल आखर, في أول الشارع الآخر शारिल आखिर, बस खे को जबर दीजिएगा, आखिर माना दूसरा, और आखिर का मतलब आखिरी, तो हम यहाँ आखिरी नहीं कहना चाह रहे, दूसरा कहना चाह रहे हैं। दोबारा बोले फी अव्वल शारिल आखर, في أول अव्वल الشارع शारिल आखिर, क्या मतलब हो गया, दूसरे रोड के शुरू में। अब मैं आपसे थोड़ा सा इम्तिहान भी तो आपका लेना, जरा पूछे, अगर कहना है थोड़ा सा आगे मेडिकल स्टोर कहाँ है, वेन सैदलिया, अब आप बोले थोड़ा सा आगे, कैसे बोलेंगे, قدام الشيء ये قدام شوي. قدام नहीं, बस قدام قدام شوي، قدام شوي. وقت करके قدام شوي, قدام बोले قدام 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 شوي, क्या कहेंगे, شوي. شوي. قدام شوي. شوي, थोड़ा सा आगे। अगर कहना है कि दाएं जानिब मुड़ जाओ, टर्न कर लो, तो टर्न करने के लिए क्या कहते हैं, रुक على तो नहीं रुह अलल यमीन, अच्छा रुख चले अलल भाई, यमीन। जबरदस्त, रुह अलल यमीन कह दिया ना, रुह अलल यमीन, يمين ये भी है। और वैसे रुख का मतलब होता है जाओ, मतलब आपने ये कहा कि दाएं जानिब पर जाओ, राइट साइड पर जाओ, लेकिन अगर टर्न करने के लिए कहना है कि जो है, अब मिसाल के तौर पर कि आप राइट साइड पर मुड़ जाना, ठीक है ना, तो आप कहेंगे लुफ अलल यमीन, क्या कहते हैं, बोले लुफ अलल यमीन, लुफ कहते हैं, लुफ लुफ अलल यमीन, असल में लफ्ज़ लुफ़ा, फादा बर फाय, तो वफ करके कहते हैं लुफ अलल यमीन, बोलिए लुफ अलल यमीन, और अरबी में मुड़ने को इन अतिफ भी कहते हैं, बोले इन अतिफ अलल यमीन, बोलिए इन अतिफ इन अतिफ अलल यमीन, सब बोले दोबारा, إن أقف على اليمين इन अतिफ अलल यमीन। على اليمين इन अतिफ और लुफ दोनों का मतलब होता है मुड़ जाए, और रुख भी कह सकते हैं। देखें आप लोगों ने माशाल्लाह कुछ ना कुछ याद है तो बना जरूर लिया हमारा। इन अल्फाज को भी अब आप जल्दी से नोट कर लें जो लिखें, ठीक है ना, वरना फिर अच्छा लास्ट रिकॉर्डिंग जो है वो माशाल्लाह हमारे मुशर्रफ ने, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, कि इन्होंने वो सारी रिकॉर्डिंग मुझे भेज दी थी, और पता नहीं किस तरह इन्होंने टेलीग्राम से जो है उसको भेजकर व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दिया था, तो फिर मैंने आप लोगों को भेज भी दिए कल के लेसन और आप लोगों की रिकॉर्डिंग जो भी है, जो कुछ हमने पढ़ा और जो आपने बोला वो मैंने आपको भेज दिया, तो आप उसको देख सकते हैं और व्हाट्सएप के अंदर ही मौजूद है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और अगला जुमला है, देखिए ये 7-8 मिनट है अभी इस
अकॉर्डिंग में तो जहाँ तक पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं. अब और कोई खरीदारी करनी है तो इस तरह बोलते हैं. मिसाल के तौर सामने खातून है तो देखिए कैसे कहते हैं, बोले अहलन तफद्दली. अहलन तफद्दल। अहलन तफद्दली। देखिए क्या लिखा है, खुश आमदीद फरमाएं, तशरीफ लाएं, इन मानों में आ रहे हैं. तफद्दल का मतलब होता है कहते हैं, ये कह रहा है वेलकम, प्लीज. प्लीज कह के खामोश हो गया. क्या मतलब हो गया? मतलब ये है कि खुश आमदेद, बराए मेहरबानी तशरीफ लाइए. क्योंकि वो दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, गोया कि यूं समझ लें, तसव्वुर कर लें कि एक दुकानदार दुकान के सामने खड़ा हुआ है बाहर गेट के पास और वो वेलकम कर रहा है अपने ग्राहक को. तो कह रहा अहलन तफद्दली, जी जी प्लीज है खातून आप तशरीफ लाइए. दोबारा बोले अहलन तफद्दली. अहलन तफद्दली। अब उस औरत ने कहा लौ समह, बोले लौ समह, बराए मेहरबानी, हल इंदका कमीस सूफ, बोले हल इंदका. क्या मतलब है? हल माना क्या क्या, इंदा माना पास, का माना आपके, क्या आपके पास. कमीसू का मतलब शर्ट, सूफ का मतलब होता ऊन की. क्या आपके पास ऊन की बनी हुई कमीज है, यानी शर्ट है, ऊनी शर्ट है. ऊन का मतलब क्या होता है? जो दुब्बे के बाल होते हैं, यानी जो स्वेटर वाला जो कपड़ा होता है, इससे स्वेटर वगैरह बनता है. तो इस टाइप की उसको शर्ट चाहिए खातून को. इसका मतलब वो गर्म कपड़े मांग रही है कि सर्दी का मौसम. हल इंदका कमीस सूफ, बोले हल इंदका कमीस सूफ। क्या आपके पास जो है वो वूलन शर्ट है, ठीक है ना. अब देखें आप जरा, इंदका की जगह आप लदई का भी कह सकते हैं, ठीक है ना. हल लदई का कमीस सूफ, बोले हाँ, क्या आपके पास जो है वो ऊन की कमीज है. हल लदई का, इंदका, दोनों का एक ही माना है. तो इसको भी याद कर लीजिएगा. और मजीद आगे चलें. अब उसने दुकानदार ने कहा नाम, क्या कहा? نعم नाम, जी हाँ, मौजूद है. नाम. अब इसके बाद उसने कहा मा क़ियासुहु, बोले ये हु जो है ना इस कमीज की शर्ट की तरफ लौट रहा है. उसने बोला उसका साइज, माँ का माना क्या क्या है. तो अगर साइज पूछना हो तो उसको अरबी में कहते हैं क़ियास. हम जूते खरीदने जा रहे हैं, चप्पलें खरीदने जा रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, ठीक है ना, कपड़े खरीद रहे हैं, टोपी खरीद रहे हैं, तस्वीर खरीद, कोई भी चीज आपको खरीदनी है उसके साइज का पूछना है तो आप क़ियास कहेंगे. मा क़ियासुहु, बोले उसका साइज क्या है. और सऊदी अरबिया में ज्यादातर जो हमने वर्ड सुना वो ये है, ये भी मैं बता दूं. आप बोले मेरे साथ मिलकर, कम मकास, बोले कम मकास. तो क़ियास और मकास दोनों का एक ही मतलब है. दोबारा बोले कम मकास. कम मकास। कम मकास। अब आप मुझे बताएं इसका तर्जुमा क्या बनेगा. कम मकास का तर्जुमा बताएं. कम कितने, मकास. पास, मकास का माना अभी तो बताया, जो क़ियास का मतलब है. क़ियास क़ियास का क्या मतलब है? क़ियास साइज, साइज। साइज. तो इसका मतलब कितना साइज है, मतलब साइज कितना है, जैसे यूं कह देते ना, तो इस तरह बोलते कम मकास, कितना साइज है. मतलब वही बात है, मा मकास, कम क़ियास, दोनों एक ही माना. साइज बताइए, तो इसका मैं कह रहा है वो कितना साइज है भाई. कम मकास. दोबारा बोले कम मकास, कितना जवाब साइज है. में जो है उसने दुकानदार ने कहा मिनल क़ियासिल वसत, बोले من वसत का मतलब होता है दरमियाना, दरमियाने साइज की. उस औरत ने कहा दरमियाने साइज की शर्ट चाहिए मुझे. तो मिन का माना है ठीक. यहाँ पर मिनल क़ियासिल वसत, बोले من المقاس क़ियास भी कह सकते हैं और मकास भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना. मिनल मकासिल वसत, क्या कह सकते हैं? मिनल मकासिल वसत. ये खान साहब जो है ना हमारे गड़बड़ कर रहे हैं जरा स्क्रीन के अंदर. अच्छे वो होते हैं जो टीचर को पता है. अब देख रहे हैं इन्होंने ये पीले पीले निशान लगा दिए, इसीलिए मैं सिक्योरिटी में जाकर जो है ना एक्सेस नहीं देता हूँ ना ये स्टूडेंट. तो जो है अब इसकी वजह से देखें हम डिस्टर्ब भी हुए. तो बस आपका काम पढ़ना है बेटा, आपको लिखना करना थोड़ी है. क्या कर रहे हैं आप, ये लेटे उसके अंदर निशान मार रहे हैं आप. चलें. मिनल मकासिल वसत, बोले من वसत. तो इसका मतलब हो गया दरमियाने साइज की. अगर वो कहना चाहता है कि मिसाल के तौर पर देखें ना, इसका मतलब हो गया मीडियम साइज हो गया ना. अगर कहना है स्मॉल साइज, छोटा साइज, तो आपको पता है छोटे को क्या कहते हैं, सगीर. तो आप क्या कहेंगे, बोल दें डायरेक्ट शॉर्ट करके बोल दें क़ियास सगीर, बोलें क़ियास सगीर। इसका मतलब हो गया स्मॉल साइज हो गया. अगर लार्ज चाहिए तो फिर दोबारा बोल दें क़ियास या मकास. अब मैं जानबूझ के मकास सीख रहा हूँ ताकि दोनों लफ्जों का इस्तेमाल हो. मकास कबीर, बोलें
مقاس کبیر. یہ لارج سائز ہو گیا، یعنی کہ یا پھر قیاس کبیر. ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص کو ایکسٹرا لارج سائز کی قمیص چاہیے تو وہ کہے گا، قیاس یا مقاس کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، قیاس کبیر جدن. بولیں قیاس کبیر جداً. ایکسٹرا لارج. جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی، بہت زیادہ بڑی. تو انہوں نے ایکسٹرا لارج کے لیے اس طرح کہتے ہیں، بہت زیادہ بڑے سائز کی، یوں کہتے تھے عرب میں، کیونکہ جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی. تو دوبارہ بول دیں. اب آپ بولیں ارید قیاس صغیر. بولیں اريد قياس صغير. مجھے اسمال سائز کی چاہیے. اور اگر ابغا بھی لگا دیں، ابغا قیاس وسط. بولیں ابغا قیاس وسط، درمیانہ سائز ہو گیا. ابغا قیاس کبیر. بولیں قياس كبير. قیاس صغیر. اسی طرح بولیں ابغا مقاس کبیر جدا. ابغا مقاس. ابغى قیاس جدا. اب اس نے جواب میں کہا هل ترغبین لونا معینا. بولیں سامنے عورت ہے نا. هل ترغبين لونا معينا. دوبارہ بولیں هل ترغبین هل ترغبين لون معین. لون لون معين. معين. لون نون ہے، لون معین. لون معين. لون معين. اور اگر پورا آپ نے کہنا ہے تو هل ترغبین لونا معینا. بولیں هل هل ترغبين ترغبين لونا معينا. لون ہل معين. کا مطلب ہے کیا، ترغبین کا مطلب آپ کو چاہیے، کیا آپ کی رغبت ہے، کیا آپ کی دلچسپی ہے، کیا آپ چاہتی ہیں. لونن کلر، معینن کوئی خاص، کیا آپ کو کوئی خاص کلر چاہیے، یہ مطلب. ہل ترغبین لونا معینا. بولیں هل ترغبين لونا معينا. شاید کال کبھی بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی تو پریشانی ہونا، اسی سے ہم آگے بڑھا لیں گے جہاں تک پڑھا. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہل تریدین لونا معینا. بولیں هل تريدين لونا هل معينا. تريدين لونا معينا. کیا آپ کو چاہیے تریدین